जब मैं बात कर रहा हूँ और कम्युनिटी के लिए बात कर रहा हूँ, तो आई स्पीक फ्रॉम द हार्ट, which is why I start getting goosebumps when I speak from the heart. But so diving straight in, right? हमने टेक्नोलॉजी की बात करी, एफिशिएंसी की बात करी, बहुत सारी चीजों की बात करी, बट आई वुड लाइक ऑल माय फेलो पैनलिस्ट्स टू थिंक अबाउट पीपल, कि ये चेंज्ड एनवायरनमेंट में हम लोगों के साथ काम करते हैं, लोग हमारे साथ काम करते हैं, कुछ लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, कुछ लोग हमारे ऑफिसेज में काम करते हैं, और हिंदुस्तान जो है एक हायरार्किकल सोसाइटी रहा है, और मारवाड़ी तो बहुत ही हायरार्किकल होते हैं, सॉरी आई हैव नो शेम इन सेइंग इट, राइट? दैट बीइंग सेड, व्हाट पीपल प्रैक्टिसेस विल यू इम्प्लीमेंट कि सक्सेस के लिए, आने वाले समय में सक्सेस के लिए किस तरह की पीपल प्रैक्टिसेस आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अपने अपने डोमेन में, which makes this world a much better place and a more efficient place? Maybe we start with Damodar ji and then we go around all my four panelists. What is surprising us when our supermarkets are running in this phase is how much we can learn from our own people. मैंने खुद ने कुछ साल पहले लिखा था कि इंडिया में अगर इवन 5-स्टार होटल में एक क्यू में एक 4 आर्म जितना डिस्टेंस लोगों के बीच में होगा तो वो लोगों को अनकंफर्टेबल करता है. That distance will always get bridged. And I am seeing इतना पेशेंस है लोगों में, हमारे कस्टमर्स में, वो समझते हैं न्यू सिचुएशन, दे आर फॉलोइंग द न्यू प्रोसेस. हमारे टीम मेंबर्स जो हैं in the new situation, we have to work with less than half the number of people. So as long as, but they're managing to divide their work. Our stores have started working now. There are tasks have been divided. अब वो रात को भी काम करते हैं क्योंकि रात जो कस्टमर नॉट फेसिंग काम है वो सब रात में होते हैं, कस्टमर फेसिंग काम दिन में होते हैं. हमारे स्टोर अब रात को ई-कॉमर्स की डिलीवरी कर रहे हैं, दिन में फिजिकल स्टोर चला रहे हैं. तो इस तरह से जो बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है, हमारे people who are both our associates and our customers are telling us they are open for the new way of interaction in the consumer business. And obviously we have to take care, obviously we have to retrain, obviously we have to show that we care to everybody in our practices. But I'm very optimistic क्योंकि हम रोज ये चीज कर रहे हैं. As long as we are genuine, both employees and the customers that we handle will reorient to the new practices that we'll be bringing. Thank you, Damodar ji. मैं सुपम को request करूंगा, maybe you share your thoughts as well. So hi Akash. So I think in my view, teams, I mean, this hierarchical model, I personally sort of totally don't believe it. I sort of hate it. And that's not the right model in today's tech world in which case. I think the way is we should have a lot of empathy in today's time, how people are coping up, of course, with your customers, with especially young parents in our case, which have, like in India, there are 2 million babies are born every month, 2 million. And just imagine they don't have goods and when the baby comes home. So there is a lot of pain that are there with the customers in their current time. So I think we have to have our teams really, connect with them in whatever digital form today, to be able to connect with them, empathize, and be able to be ready when the lockdown opens to be able to do, apart from essential product deliveries. And the model that we have to adopt with the team is what matters. And this is not COVID times or otherwise. It's like, the one who has thought, one who has the idea really is what really succeeds. And I think you have to break those barriers. You have to build a culture in the organization that the brightest of the idea or the small, any idea can come from any rank of the hierarchy. If there is any hierarchy that exists, just to put the team together. But it can come from anywhere, and it needs to be respected, needs to be applauded, needs to be nurtured, needs to be put into practice. And likewise, this, and I'll give you one quick example. If there is a product
I mean, I think from my desk to a picker in a warehouse, there will be at least 10 layers in the system. But technology helps me to find if there is a wrong pick that has happened, which has led to a wrong delivery by the customer. I can actually find out through the system and reach the picker. And all the 10 people in the hierarchy would not feel bad because I have pointed the right problem and the root of the problem. And I think that has to be respected in the organization, so that the hierarchies are not the way to run organization. That's not how it should be. The talent, the thought, the capabilities must be respected. And that really develops a future, I think a very well, I would say cohesive organization, which involves people, which makes it more defensible as a company, because the thought can come from anywhere. I think that's how we are building it. And I think that's how all global tech companies have really built it over time. That's our experience or my experience. Well, thank you, Supam. मैं एक दूसरा क्वेश्चन पोज करता हूं और ममता जी से शुरू करते हैं. ममता जी, आपने कहा कि एफिशिएंसी के बारे में बात करी, आपने कॉस्ट सेविंग्स के बारे में बात करी. हमारी ऑडियंस में बहुत सारे बिजनेस के लोग हैं और एक थोड़ा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वाला माइंडसेट हम थोड़ा सा साइड में रख देते हैं और बेसिक्स कॉस्ट एफिशिएंसी हम बिजनेस में कैसे अचीव कर सकते हैं. एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस कैन गिव सम इनपुट्स ऑन दैट. सो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप से शुरू करते हैं और फिर नीरज एंड देन दामोदर जी, वी कैन गो दैट. आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट करिए. जब मैं बता रही थी, ऑफ कोर्स आई वाज टॉकिंग ऑफ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज आई मेंशन्ड द नेम आल्सो. बट अगर हम एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करना चाहें तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम आवर होम ओनली. एक घर भी एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन ही है. अगर एक गृहिणी, आई एम जस्ट कॉन्सेप्ट दे यू बिकॉज आई एम आल्सो होम मेकर अलोंग विद बीइंग अ प्रोफेशनल. हम हमेशा ऐसा देखते हैं कि हम घर में जो खर्चा करते हैं, जब हमारा हस्बैंड या कोई बोलता है बहुत खर्चे हो रहे हैं यार, तो हम हमेशा बोलते हैं भाई तुम चला लो, तो वो ऐसे ही बैकआउट हो जाता है, बोलते हैं नहीं नहीं ठीक है चलो. बट नाउ इन द लॉकडाउन पीरियड, एक तो मैं कल बात कर रही थी ऐसे हमारे पैनलिस्ट से, इस लॉकडाउन पीरियड में ऑन द लाइटर साइड थी, कभी आप कोई हस्बैंड ये तो नहीं बोलेगा कि घर में करते क्या हो. उनको ये तो पता चल गया कि घर में कितना काम होता है. अब ये भी एक मौका भी है जहाँ पे हम घर में भी अपना रीअसेस कर रहे हैं कि वेयर सेविंग्स कैन बी डन. कौन से खर्चे ऐसे थे जो हम जबरदस्ती कर रहे थे. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल से, एक मंथ में एक बार कहीं जाना होता है और हम एक ड्राइवर को रखते हैं, वी पे देम 20,000 रुपीज, सब कुछ बोनस ये वो कर कुरा के 30,000 रुपया एक ड्राइवर के पीछे निकल जाता है. जाना क्या कितनी बार है, एक बार जाना है या मैक्सिमम 2 बार जाना है. द लिमिटेड पॉइंट also I'm trying to say by drawing an analogy is, for example, घर में हम एक बंदा नौकर रख लेते हैं, काम है नहीं कुछ, 2 आदमी घर में रहते हैं, एक पानी का ग्लास के लिए हमें लगता है कि हमें एक नौकर चाहिए. बट दिस टाइम हैज एक्चुअली पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग कि क्या एक्चुअली वो चाहिए था. एक हस्बैंड सोचता है कि अब मैं उठ के लेना इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि ये 2 महीने में काफी कुछ मेन फोक भी सीख चुके हैं कि साथ साथ मिलके ही काम करेंगे तो ही हो पाएगा, नहीं तो घर में खाना वाना भी शायद मुश्किल हो जाएगा मिलना ऑन द लाइटर साइड. सो आई एम जस्ट सेइंग दैट वी एक्चुअली, अगर हम सचमुच कागज कलम और अपने दिल और दिमाग को लेकर बैठे तो बहुत कुछ ऐसे खर्चे हैं जो हमें लगता है कि बहुत जरूरी था और वो कर्टेल किया जा सकता है. देखना ये कि कौन सा जरूरी है कौन सा जरूरी नहीं. वी हैव टू क्रिएट बकेट्स. अगर जब करना है ये एक्सरसाइज तो आपको बकेट्स क्रिएट करने पड़ेंगे. बहुत जरूरी नहीं जरूरी, मीडियम. तो उबर यूज कर लेते हैं ड्राइवर नहीं रख के. तो वी हैव टू जस्ट ट्राई टू स्ट्रेटेजाइज कि ऐसा कौन सा काम है जो ये जरूरी तो है बट इसके जगह अगर ये यूज कर ले तो शायद खर्चे में फर्क पड़ जाएगा. So that's how even a small organization is, and I am quite involved in that exercise professionally. And people, and nowadays we charge on, हम लोग internal audits वगैरह भी जब करते हैं तो एक internal auditor को रखते हैं तो हम ये नहीं बोलते कि हम तुम्हें इतने पैसे मंथली दे देंगे. हम ये बोलते हैं कि जितने पैसे तुम मेरे बचत करवा के दोगे without affecting my top line, bottom line, etc., on that I'll give you a percentile. तो आजकल ये एक्सरसाइज जो हम भी करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, we also get as a percentile. So we are very keenly noticing that it's helping people.
थैंक यू ममता जी, थैंक यू, शुक्रिया। मैं बाकी के पैनलिस्ट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा हिंदी का ज्यादा प्रयोग करें इंग्लिश की जगह। नीरज जी, आपके कुछ थॉट्स, एफिशिएंट बिजनेस बनाएं, कैसे खर्चे कम करें अपने, बिकॉज ममता जी ने कहा जीवन जीना, लाइफ और लाइफस्टाइल दोनों में फर्क है। मतलब लाइफ में तो क्या है, दाल रोटी में भी लाइफ चलती है, लाइफस्टाइल में फरारी भी कम पड़ती है, राइट। तो हम दिस टाइम्स, ये समय हमें सिखा रहा है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, और सिमिलरली बिजनेसेस में हाउ शुड वी बिकम मोर एफिशिएंट। तो योर थॉट्स नीरज। हाँ, तो बहुत ज़रूरी है, और अभी मौका भी ऐसा मिला हुआ है कि अपने बिजनेस के सारे कॉस्ट को एनालाइज किया जाए। कई बार क्या होता है कि जब आपके ना खर्चे जुड़ते चले जाते हैं, आप ध्यान नहीं देते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कि आपने किसी समय पे कुछ चालू किया था और उसकी उस समय इम्पोर्टेंस भी रही होगी, लेकिन आज की तारीख में उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन वो खर्चा चलता जा रहा है। रियल एस्टेट में ऐसा होता है कि आपने कुछ गोडाउन ले लिए, वो पड़े हुए हैं, आप उसको एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज में ऐसा होता है, हमने अपनी फैक्ट्री में ऐसा देखा। तो जब अब मौका मिला तो सारे खर्चों को एक साथ जब डिटेल में गए और सारे सबको बुला करके गए। इसमें भी ऐसा क्या है कि अगर आप खुद करने की कोशिश करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट नहीं मिलता है। आप सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को बुलाएंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे, तो उनके जो आइडियाज निकल के आते हैं कि नहीं भाई, ये जो खर्चा है ये तो हम कम कर सकते हैं। और यही चीज अगर आप पहले पूछे होते तो सब ये बोलते हैं कि नहीं, ये तो चाहिए फॉर सम सेफ्टी, फॉर समथिंग, हमको चाहिए, ये तो चलता आ रहा था, तो पहले से चलता आ रहा है, ये तो चाहिए। बट आज ऐसा जीरो बेस बजटिंग जिसको बोलते हैं, उसका मौका मिला है। और मैं खुद आई एम सरप्राइज्ड कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमने पिछले 1 महीने में काफी काम किया है इस पर, और इतने सारे खर्चे कम कर लिए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। अच्छा, दूसरा, खर्चे आपके यहाँ भी होते हैं, खर्चे आपको वेंडर के यहाँ भी होते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे काफी एक्सक्लूसिव सप्लायर्स हैं, उनको बुलाया हमने, बोला कि भाई देखो, अब ये तो इस कॉस्ट पे आना मुश्किल है, आपको भी पता है, उनको भी पता है, हम लोग मिल करके कैसे खर्चों को कम करें। और ऑलमोस्ट 80% वेंडर्स के साथ जब हम लोग बैठ के बात किए, कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकल गया। और ऐसा नहीं कि उनका नुकसान हुआ, उन्होंने भी खर्चे बचाए, वो भी पास ऑन हुआ, हमारी भी प्राइस कम हुई, और अब हम आगे उसको पास ऑन करेंगे। तो ये बहुत ही जरूरी है कि इस मौके का मतलब इसको लेट इट नॉट गो वेस्ट। इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से एनालाइज कर लीजिए, अपने सारे खर्चों को एनालाइज कर लीजिए, और वंस इन 3 years, वंस इन 5 years ये तो करते ही रहना चाहिए अपने बिजनेस। दामोदर जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? बिजनेस, नॉर्मली बिजनेस का ये डीएनए होता है कि बिजनेस हमेशा ऑप्टिमिज्म पे चलता है। तो जिसको हम खर्चे बांध लेते हैं बोलते हैं, वो भी किसी न किसी का विजडम है जो हमने आगे और प्रोग्रेस होगा उस हिसाब से सोच के ही बांधा था। एडवांटेज इस पीरियड में ये है कि आपको अगर कोई कॉस्ट को या कोई प्रोसेसेस को रिविजिट करना है, अब आपको किसी को वो समझाने की जरूरत नहीं है। जैसे नीरज ने बोला, किसी को भी बुला लो मेरे टीम में, छोटे से लेके मेरे वेंडर्स, मेरे लैंडलॉर्ड्स, कोई ये नहीं बोलेगा कि क्यों विजिट करना चाहिए इसको। आप बोलोगे कि सब लोग तकलीफ में है, तो कोई नान बोलने वाला अभी नहीं है। सबके दिमाग उस हिसाब से इस सिचुएशन में, इस मंथन ने सबके दिमाग उस हिसाब से खोल दिया है। सो दिस इज द राइट टाइम टू गो एंड विजिट। जिस तरह से लोगों ने बात की, एंड वी आर बीइंग सरप्राइज्ड कि यार ये वाले सवाल 6 महीने पहले कोई किसी ने पूछे क्यों नहीं। लेकिन वो 6 महीने पहले नहीं पूछे, वो गलती नहीं है, क्योंकि हम सारा बिजनेस भी इस पे चलता है कि अगला साल और अच्छा होने वाला है। बट इस पर्टिकुलर इवेंट ने हमको सिखा दिया है कि थोड़ा एक बैकफुट क्रीज के अंदर ही रखना चाहिए, जबकि आप फ्रंट फुट पे आप ऑप्टिमिज्म से खेल सकते हैं, बैकफुट कॉस्ट का अंदर रखना चाहिए। हमको तो ये अच्छा भी लग रहा है कि जेन्युइनली हम खर्चों को रिविजिट कर पा रहे हैं विद द लीस्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि सब में वो समझ आ गई। शुक्रिया दामोदर जी। दोनों स्टेटमेंट्स, दोनों क्वेश्चंस पे थोड़ी सी टिप्पणी मेरी तरफ से। पहले पीपल की जब हम बात कर रहे थे, लोगों की बात कर रहे थे,
तो हमारे बिजनेस में 2600 लोगों को वर्क फ्रॉम होम 7 दिन के अंदर अंदर कराया। थोड़ा शुरू में खर्चा हुआ, लेकिन प्रोडक्टिविटी जो है बिजनेस की प्रोडक्टिविटी एक्चुअली 20% बढ़ चुकी है। तो क्योंकि उनको आने जाने में खर्चा नहीं लगता, उनको ट्रैफिक में फंसना नहीं पड़ता, उनको अपनी गाड़ी लेकर के ड्राइव करना नहीं पड़ता, उनके खुद के खर्चे कम हो गए। सो वेरी डिफरेंट, अलग अलग, मतलब आई थिंक ममता जी ने कहा था कि एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी है। तो ये एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी है, हमें रीलुक करना चाहिए, और प्रकृति हमें ये सिखा रही है, तो उसको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट टाइम टू डू इट। मे बी वन क्वेश्चन, एक सवाल जो है वो फाउंडर्स के लिए, क्योंकि फाउंडर्स जहाँ होते हैं, एंटरप्रेन्योर एक अलग ब्रीड होता है, और हमारी इवन मारवाड़ी नई जनरेशन, मारवाड़ी एंजल नेटवर्क या VC funding, we are also trying to do a lot of things as a community. The newer generation wants to become more and more entrepreneur. तो सवाल नीरज और सुपम से, मे बी सुपम पहले आप, कि आपने अपने बिजनेसेस जो हैं वो 7, 8, 9 साल पहले शुरू किए। आज की परिस्थिति को देखते हुए, टेक्नोलॉजी जहां पहुंच चुकी है, लेकिन साथ में नए चैलेंजेस जो हम अभी देख रहे हैं, और नया नॉर्मल कुछ और होने वाला है, इन सब चीजों को देखते हुए अगर आपको नया बिजनेस आज शुरू करना होता, तो आप किन किन बातों का ध्यान रखते? आप किन किन चीजों का आज ध्यान रखते? बिकॉज टाइम्स चेंज एंड थिंग्स चेंज। सो सुपम, आपको। Sure. So, Akash, I think, yeah, as you rightly said, I think the entrepreneurs is a very, very special breed. And I think entrepreneurs are very smart people to find the, need gap. And I think in today's time, this is a new opportunity where a new normal is being created. And therefore, world has been put into a new order, and the new opportunities are coming up. Whether it is, yes, we have to think more carefully, because the opportunity can be seen very quickly, but can we make a defensible model out of it for a long run is something that we need to still think hard on it. But I think always when I started, like my first sort of a venture, the .com burst happened, and it gave birth to a new thought, and that's how we started with the new normal in 2001. And again, in 2008 was a different scenario, and 2010 is when FirstCry started. And it takes around 7 to 10 years to actually build a model, a sustainable business model. So it is not a small, journey of 1 or 2 years or 3 years. You have to be very lucky to be getting an exit in so quickly. But if you want to make a sustainable model, it takes time. But I think what you need to do is, in this time, first of all, you have to find, the game doesn't change, as in the base model doesn't change. Find a like-minded partner with a complementary skill. Have at least 2 or 3 team members, core founding team member, to sort of build a thought and hone the thought and narrow the thought, as what Neeraj was also saying earlier, and build that core architect as a model, and then try and build in the current scenario, whether, build preferably more digital products. I think today's time is teaching us that we can accomplish more in the digital world than probably the physical world, or maybe you have to make a stand against some of these big giants. That also has to be thought through. So I think this is a ever-evolving journey. Start from a great team, start with a complementary skill team, and start iterating in the spaces that you have strengths, which presents much more opportunistic window today than it was presenting yesterday. And it is happening in every sector, whether it is retail sector, whether it is education sector, whether it is payment sector, whether it is, you pick any sector. In every sector, there is a new normal that is getting created. So you have to feel comfortable in the sector that you belong to or your team has strengths in, and then you evolve out of that, how you can leverage that. Of course, technology is something which is very, very fundamental, very, very critical. So you must have a key architect of technology in your team, in your core team, in your founding team, to be able to ensure that you do not get stuck in that process. Because
things will change. You will have your, troughs and crests. So therefore you must have a very high super specialist technology co-founder in your team. So I think I would advise is to all new generation, entrepreneurs, to really think the rules haven't changed. The landscape has changed. Therefore, new thoughts have to be applied based on your comfort, based on your background, based on your knowledge and strengths, to be able to apply there and cruise fast. That's my very generic advice at this moment, because I can't give any specific at the moment. नीरज जी, संक्षिप्त में एक या दो आकाश जी, sorry to interrupt. Supam ji has a previous commitment and he will have to leave. So I would ask your permission for him to leave. Sure. Yeah. धंधा चलाना आसान नहीं है. No. Thank you very much. Thanks for joining us and it's a pleasure to have you. I'm sure सब लोगों ने आपसे बहुत कुछ सीखा. मैंने at least बहुत कुछ सीखा. और all the best. Thank you, Akash. Thank you, Supam ji. Thank you, Supam ji. Thank you, Supam ji. Thank you very much. Appreciate it. नीरज, संक्षिप्त में आप उसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगे? अगर बिजनेस आज शुरू करना हो तो क्या चीजें करनी चाहिए? सबसे पहले तो अपने घर वालों की बात सुननी चाहिए. मेरे घर में मेरे फादर वगैरह ने जब बिजनेस चालू किया तो उन्होंने बोला, यार तुम कैसा धंधा चला रहे हो कि प्रॉफिट नहीं है. हम बोले पहले शुरू के कुछ साल प्रॉफिट नहीं होता है. बोले नहीं, हमने तो ऐसा कभी नहीं किया कि शुरू के कुछ साल प्रॉफिट नहीं होता है. तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए. आई थिंक अभी क्या है, एक्सेस टू कैपिटल इतना मिल गया है. आई एम नॉट सेइंग कि ये मॉडल गलत है. ये मॉडल में ये है कि आपको यू हैव टू क्रिएट अ डिफेंसिबल मोड, तो आपको एकदम आगे बढ़ते जाना है. बट कहीं ना कहीं आज अगर मेरे को वापस से चालू करना हो तो आई विल बी मोर कॉन्शियस अबाउट कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन ज्यादा हो. ओवर द इयर्स हमने किया, बट शुरू से कर सकते थे. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, अभी लोगों को पेपर बोर्ड के बारे में मालूम है, लेकिन उससे पहले हमने 4 प्रोडक्ट लॉन्च किया जो कि फेल हो गए. और अब ऐसा लगता है कि उसमें जो ये कॉन्सेप्ट होते हैं ना, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट को बना करके प्रोडक्ट मार्केट फिट टेस्ट कर लो, वो हमने नहीं किया. हमने कहीं मतलब अपने की प्रोडक्ट अच्छा होगा, हर तरफ मार्केट में माल डाल दिया, नहीं बिका, वापस आया, वैल्यू डिस्ट्रक्शन. तो अब वो नहीं करेंगे. और तीसरा, टेक्नोलॉजी को थोड़ा ज्यादा यूज करेंगे. जैसे अभी इस पैंडेमिक में ये पता चला, आज तक हमारी धारणा ये थी कि भाई माल तो मार्केट में जा करके दुकानों से बात कर करके ही बिकेगा, सो यू हैव टू फिजिकली गो एंड सेल टू देम. बट अब ये समझ में आया कि यार फोन से भी बिक सकता है, लोग फोन करके भी माल मतलब बेच सकते हैं. तो हम क्यों बार बार जाएं और उसके खर्चे लगाएं? तो अगर हमने टेक्नोलॉजी और यूज कर लें तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में अभी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्कोप है नए मॉडल्स का और कॉस्ट सेविंग का. शुक्रिया नीरज जी. तो मेरा तो यही कहना है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है. तो बिजनेस शुरू करने के लिए या अपना काम शुरू करने के लिए कोई सही और खराब समय नहीं होता. रेजिलियंस होना चाहिए, जैसा ममता जी ने कहा. टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए. प्रोडक्ट मार्केट फिट होना चाहिए. उसके बाद में आप मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, मतलब उसमें कोई डाउट ही नहीं है. खाली ये है कि आपको अपने साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा. अगर आप बोलेंगे कि मैंने इतना काम किया, नहीं, आप कुछ मिस कर रहे होंगे, हो सकता है. तो अपने आप से ऑनेस्ट रहिए और अपना कर्म करते रहिए, ऐसा गीता कहती है. तो जरूर सक्सेस आप सभी को मिलेगी. थोड़ा सा एक अलग हटके ममता जी के लिए क्वेश्चन, एंड देन मे बी दामोदर जी भी बोलिए. मैंने एक किताब पढ़ी अभी, ब्रिजिटल इंडिया एक किताब है, ब्रिजिंग द डिजिटल इंडिया. तो ब्रिजिंग द डिजिटल इंडिया ये TCS के चेयरमैन चंद्रा जी ने लिखी है. और उसमें एक चीज लिखी है कि हिंदुस्तान में 100 मिलियन एजुकेटेड विमेन, 100 मिलियन एजुकेटेड विमेन घर पे हैं. तो ये ठीक है, कुछ लोग कहते हैं होम मेकर बहुत बड़ा काम है, विच इज गुड, विच इज वेरी गुड. परंतु इस टैलेंट पूल को हम हमारे बिजनेसेस में कैसे यूज करें? और क्योंकि ये मानना है दुनिया के सारे बिजनेसेस में कि जेंडर डाइवर्सिटी जब होती है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, सब होता है.
पर हिंदुस्तान जो है इसमें थोड़ा सा पीछे है और हमारा माइंडसेट अभी थोड़ा सा बदलना बाकी है, तो धीरे धीरे बदलेगा, हम जा रहे हैं उस डायरेक्शन में। पर ममता जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? और आपको ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट कुछ सालों से कुछ चेंज दिख रहा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप एक होम मेकर भी हैं, लेकिन ये 80-90 मिलियन लोगों को हम कैसे लेकर के आए, इस टैलेंट को हम कैसे यूज करें? ममता जी आप म्यूट पे हैं। This question is very close to my heart because I've been dealing with it in several forums. हिंदी में बोलना पड़ेगा थोड़ा सा, सॉरी। थोड़ा नहीं, पूरा हिंदी में बोलूंगी, मातृभाषा है, आती भी है। मारवाड़ी नहीं आती। बंगाली चलेगा? बंगाली चलेगा? बंगाली भी नहीं आती है, वो काफी बार सीखने की कोशिश की बट नहीं सीख पाई, घर में कोई बोलता ही नहीं। सेम है, मैं भी मराठी नहीं सीख पा रहा हूँ, 22 साल हो गया। वेरी ऑनेस्ट, ये लॉकडाउन पीरियड में बहुत हद तक हमें समझ में आया है कि वर्क फ्रॉम होम हो सकता है। अभी तक यही था कि वो बंदा या बंदी जब तक ऑफिस नहीं आएगी, दिखेगी नहीं, उसको मॉनिटर नहीं करेंगे कि क्या वो फेसबुक कर रही है या क्या वो गूगल में क्या कर रही है, पता नहीं। जब आपने अभी बात कही आकाश जी की यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, एक तो वो फैक्ट है जहां पे हम अब हमें लग गया है कि नहीं, अगर उसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो भी वो काम कर रही है, and we will be able to get some productivity out of, not only some good productivity. Secondly, I think digital इंडिया की जो हम बात कर रहे थे, टेक्नोलॉजी, अब हमें वो यूज करना होगा। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर अब बनने लग गए जहाँ पे आप कितने आवर्स काम कर रहे हो, आपकी वर्क लिस्ट में क्या वर्क ओपन था उस दिन, आपने क्या वर्क क्लोज किया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल एक बोर्ड मिनट्स बनानी है, तो जनरली हमने ये देख लिया कि वो बनाने में सपोज फॉर एग्जाम्पल से 1 घंटा लगता है, पर उस बंदे को शायद अभी 1.5 घंटा लग रहा है बनाने में। तो यू नो वी देन पुश हिम टू अ विंडो वेयर ही और शी नीड्स ट्रेनिंग। तो वो ट्रेनिंग भी आजकल हम ऑनलाइन देने लग गए। थोड़ा 1-2 साल पहले से हमने शुरू कर ही लिया था। द बेनिफिट्स ऑफ इट नाउ आई एम रीपिंग इट। तो थ्रू दो सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी वी आर एबल टू मॉनिटर कि वो बंदा या बंदी क्या काम कर रही है, कितने टाइम पे डिलीवर कर रही है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, सो वी आर एबल टू पे देम अकॉर्डिंगली। तो ये अब ये जो फीमेल फोर्स की जो हम बात कर रहे हैं, एटलीस्ट द मिडिल फीमेल फोर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हाई एंड और यू नो हु हैव वो ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग वाली मैं बात नहीं कर रही हूँ, बट जो मिडिल लेवल है वो तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। अब वो रियलाइजेशन भी हमें आ गया है। एक बात और बोलना चाहूंगी, लोअर लेवल ऑफ वर्क जहाँ पे हम डेटा एंट्री करना चाहते हैं, यू नो वी हैव सो मेनी कॉन्टैक्ट्स, हम अभी तक अपने विजिटिंग कार्ड्स को ठीक से यूज भी नहीं करते, बट ये लॉकडाउन पीरियड में हमें ये भी लगा कि यार वी आर एक्चुअली सिटिंग ऑन अ पाइल ऑफ बिजनेस, इफ आई मे से सो। वो सारे काम हम एक्चुअली यू नो वी कैन यूज अ लो एंड पीपल हु कैन डू दैट फॉर अस एंड वी डोंट नीड टू कॉल देम इन ऑफिस। आजकल तो एक कार्ड को डिजिटल अपने को यूज करना होगा, स्कैन किया और उसको तुरंत भेज दिया। सो आई थिंक इट गोज हैंड इन हैंड। इतना भी है कि आज अगर हम बीपीओ में ट्रेनिंग देके एक फीमेल को बिठा सकते हैं जो रिकॉर्डेड मैसेज पे बात करती है एंड हु इज 12 पास एंड दे डू इट प्रीटी वेल, ठीक है एक आध बार इधर उधर कुछ हो जाता है, तो हम भी अब आई ऑल्सो फील कि हमारा कर्तव्य भी बन जाता है कि हम वैसे लोगों को भी ट्रेन करें कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में अगर रिक्वायरमेंट है। वो बात तो चली गई जहाँ पे वी कैन हैव पीपल हु आर ऑन फ्रिल एक्टिविटीज अनलेस नॉट नीडेड, तो वो सेक्टर पे भी अब हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हम समाज को भी कहीं ना कहीं थोड़ा उठाकर लेकर जाएं, थोड़ा सा उत्थान की तरफ लेकर जाएं। उसके लिए अगर थोड़ा एक्स्ट्रा माइल हमें भी चलना पड़ता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट बट एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग। सीएसआर करना ही है, वो तो मैंडेटरी भी है, और हम तो काफी दामोदर जी और ऐसे गुरुजन जितने लोग हैं दे आर डूइंग इट फ्रॉम टाइम इमॉर्टल, जब सीएसआर बोलते हैं कि था ही नहीं लॉबिट्स में, तो कहीं ना कहीं क्या हम ममता जी some order, हाँ अब clear. I'm almost done Akash ji. I feel that now this to answer it point blank कि ये workforce को अब हम सब tap करेंगे because of 2 reasons. As a businessman it will little bit come cheap also, and secondly अब ऑफिसेज के खर्चे अब हम नहीं बांधेंगे। एक टाइम था जब हम सोचते थे we need a lavish office, हमें अब 5,000 स्क्वायर फीट से 10,000 स्क्वायर फीट में ग्रेजुएट करना है। अब लोग सोचेंगे जो है ठीक है, धंधा पानी अच्छे से चल रहा है ना, अब लोगों को बिठाने के लिए लेट्स नॉट हैव अ बिग ऑफिस, लेट्स थिंक ऑफ अ मॉडल वेयर पीपल कैन वर्क फ्रॉम होम।
or people can work from their own workstations. अब हर आदमी अपने घर में एक ऑफिस बनाने की सोच रहा है. So I Thank you. Thank you. I'll go to the last question of the day and बहुत ही very मुंद्रा जी ज्वाइन किए, आकाश जी मुंद्रा जी ज्वाइन किए, आकाश जी. हाँ मुंद्रा जी वेलकम वेलकम. Welcome Mundra ji. Good afternoon. Good afternoon. I don't want to interrupt. Please don't interrupt the flow. Carry on. I am listening with interest. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. सुभाष जी और मधु केला जी, हार्दिक अभिनंदन. Thank you for joining us back. I know Madhu ji is also there. So maybe for the last question, I will ask all the panelists to give their views. We will go around. And if there was one message in these times that you would want to give, अगर कोई एक संदेश है जो आपके सुनने वालों को, जिन्होंने आज समय निकाला, 700 से 1000 लोग ऑनलाइन थे एक टाइम में, तो एक मैसेज अगर आप कुछ देना चाहें, संक्षिप्त में एक मैसेज अगर आप देना चाहें, तो प्लीज एंड मे बी हम शुरू करते हैं सुभाष जी से कि इन दीज टाइम्स व्हाट इज द मैसेज दैट यू विल वांट टू गिव टू पीपल. सुभाष जी, हिंदी इज प्रेफर्ड, इंग्लिश इज ओके. Thank you Akash and good afternoon all. मैंने तो काफी संदेश कल दे दिए. मैं सोच रहा था कि आज के संदेश सिर्फ आज के पैनलिस्ट को रखे जाएं, पर चूंकि कहा है हिंदी में ही कहूँगा और सोचता हूँ कि थोड़ा पोएटिक कह दूँ, क्योंकि ये जो हमने सेमिनार की है काफ़ी अच्छी बातें सबने कही हैं, लोग सुन के भी जा रहे हैं, लेकिन जो मैं 4 लाइनों में कहूँगा कि क्या हमारा पर्पज होना चाहिए. समय आता है, बुरा आता है, निकल जाता है, दूसरा समय आता है. कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं. मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, आग चाहे हो कहीं पर आग जलनी चाहिए. You should have that fire and then you can overcome this. Thank you. शुक्रिया सुभाष जी. केला जी आप हैं हमारे साथ. आई कैन सी यू ऑन द स्क्रीन बट आई डोंट नो वेदर यू आर देयर. अगर आप हैं तो अनम्यूट करिए, अदरवाइज वील गो अराउंड. दामोदर जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो अपने लिए भी यही सोचता हूँ और सबके लिए भी यही सोचता हूँ कि इस पीरियड ने हमको बताया है कि हर चीज को रिविजिट किया जा सकता है. जो चीज जो अपने काम में चेंज करने में हमको झिझक हो रही थी, उस झिझक को छोड़ने का टाइम हमको ये अभी है. तो मेरे हिसाब से जो चीजें मैं बाद में 3 साल बाद में ये चेंज कर लेंगे. अब आज थोड़ा सा डर लगता है, ये वाला चेंज करना तो है, लेकिन 3 साल बाद कर लेंगे, 2 साल बाद कर लेंगे. वो 3 साल को 3 महीने में करने का मन बनाने का ये टाइम, इस टाइम को यूज करना, ये मेरा अपना लर्निंग है. नीरज जी. मेरा संदेश ये है कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए बिल्कुल भी. ठीक है, समय थोड़ा सा खराब आया है और सबके लिए आया है, बट अगर आप उम्मीद छोड़ देंगे तो आप उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे. और दूसरा, हमेशा बी ऑनेस्ट एंड ओपन विद एवरीवन. सो भले ही आपका एम्प्लॉय हो, भले ही आपके कंज्यूमर्स हों, आपके वेंडर्स हों, आपके कस्टमर्स हों, अगर आप उनसे ओपनली बात करेंगे. एक छोटा सा उदाहरण देते हैं. जैसे हम इंडिगो में बहुत माल बेचते हैं और इंडिगो बंद हो गया और ये सीजन टाइम है, तो हमारे पास बहुत माल पड़ा हुआ है और हमने बिल्कुल ओपनली उस माल के ऊपर एक स्टिकर लगाया कि ये इंडिगो के लिए माल बना था, लेकिन अब हम नहीं बेच पा रहे हैं, तो आप खरीदेंगे क्या? कंज्यूमर के लिए. और सुपरमार्केट में सप्लाई की, और आप मानेंगे नहीं, सबसे ज्यादा सेल अब उस प्रोडक्ट की है. तो अगर आप ओपनली अपने कंज्यूमर को जाके भी एक प्रॉब्लम बताएंगे तो वो कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन निकल जाता है. तो सो बी ऑनेस्ट एंड बी ओपन. ममता जी.
I wish to only say that if we remember financial crisis 2008 का आया था, आज किसी को भी याद नहीं है. इसी तरह ये टाइम भी एक अनुभूति के तौर पे हमारे साथ जरूर रहेगा because of the learnings that emerges out of it. But अगर people are only there to sometimes feed us with negative thoughts. World is going for a doom, सब कुछ खत्म होने वाला है, ये है वो है, वैसे सब थॉट्स को ना एक कान से सुन के हमारे दूसरे कान से निकाल देना चाहिए. And we should, I think, never fill our heart and mind with negative thoughts, because सब कुछ वहीं से शुरू होता है, thoughts से शुरू होता है. तो अपने thoughts को I think बहुत ही solemn तरीके से we'll have to keep it very pious and let not people touch it, because that is only what gives us the strength. मेरा तो यही मानना है कि मैं भी एक बहुत बड़े जॉइंट फैमिली से आई हूँ, बहुत सारे चीजों को देखा है इतने सालों में, कभी भी अपने फायर इन द बेली को खत्म नहीं होने दिया. There was a lot of issues that came up, but I always thought if others can do it, I can also do it. और आज तो ऐसी पोजीशन है कि हम सब we are sailing on the same boat. ऐसा नहीं है कि मेरा नेबर तो बहुत अच्छा कर रहा है और मैं तो एकदम I am doomed, etc. etc. I think we are all on the same boat, so we should all learn from ourselves rather than anything else. शुक्रिया सबका बहुत बहुत. मैं अगर समराइज करूं तो कीपिंग द फायर, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में तो जलते रहना चाहिए. आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी. बी ऑनेस्ट एंड बी ओपन, राइट. ये तो मतलब ये एक गुर है जो अगर हम सीख जाए ना, हम मानव जाति में हम अगर एक दूसरे के साथ में ऑनेस्टली और ओपनली बर्ताव करने लगे तो आई थिंक दिस वर्ल्ड विल बी अ वेरी वेरी डिफरेंट प्लेस एंड अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. और तीसरा मेरी तरफ से अगर मैं कुछ कहना चाहूं तो ये कि कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने का टाइम है. इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. कैटरपिलर से बटरफ्लाई जब आप बन जाते हो तो आप वापस कैटरपिलर जाके नहीं बन सकते. तो इस समय का सदुपयोग करिए अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में, और क्योंकि ये समय वापस नहीं आएगा, तो प्लीज मेक द मोस्ट यूज ऑफ इट. बी ओपन, बी ऑनेस्ट, कीप द फायर एंड ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ. एज आई सेड, राइट, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है. On that note, I hand it over back to Ashish. और उससे पहले पूरी ऑडियंस को मेरी तरफ से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया. I hope all of us, हमने कोशिश करी आपका समय का सदुपयोग करने की. तो thank you for attending this and giving us your precious time. Thank you. Ashish, over to you. Yeah, we also have Kabraji joined us. Kabraji, if you could hear us. Akashji, if you can ask a closing note from Kabraji as well. Kabraji, राम राम, जय श्री कृष्णा. आपसे बात करता हूं तो हमेशा मुझे याद आने लगता है, कुछ हैदराबाद में सीखा, कुछ पूना में सीखा आपसे. तो जाते जाते फाइनल वर्ड्स, लॉकडाउन से लॉक ओपनर, लाइफ से लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल से लाइफ, आपकी भाषा में 2 शब्द ताकि सब याद रखें उसको. आप म्यूट पर हैं. हाँ, अनम्यूट कर दिया मैंने. हाँ, तो एकदम एक ही बात कहूंगा कि न तो निगेटिव मैसेज पढ़ो, न निगेटिव लोगों के साथ रहो. देयर इज ओनली अल्टरनेटिव है जो बी पॉजिटिव. एक बात वापस रिपीट करना चाहता हूँ जो कई लोगों ने सुना नहीं होगा. भगवान ने लाखों साल पहले या हजारों साल पहले बहुमत लोगों का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव बनाया था. तो शायद भगवान को उस टाइम भी मालूम था कि निगेटिव समय में जब ब्लड ही हमारा बी पॉजिटिव बनाया तो हमारे ब्लड के अंदर और हमारे शरीर के अंदर या हमारे डीएनए के अंदर कोई निगेटिव चीज की गुंजाइश नहीं है. इसलिए एक ही संदेश है, ये समय में भी और भविष्य में कभी भी निगेटिव लोगों के साथ में उठना बैठना एक कैरेक्टर समझ के चलिए. चाहे आपके ऑफिस में, चाहे आपके घर में, चाहे दोस्तों में, जो लोग बहुत निगेटिव बातें करते हैं उन सबसे बहुत दूर रहेंगे तो सारी चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी. बहुत ही सुंदर रिमार्क. बी पॉजिटिव सोच. आई थिंक दैट्स द क्रक्स
की है वो हर चीज का। तो सभी पैनलिस्ट को बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई हैंड इट ओवर बैक टू आशीष एंड टू राहुल। So thanks a lot, Akash ji. You played a fantastic host today. आवाज से अंदाज आ रहा होगा कि what had been the scenario with BISCON. कल कम से कम 500 के करीबन फोन कॉल अटेंड हुए because of the people who had been attending BISCON from across the thing. So as we come towards the closure of the BISCON 4th edition and the first edition on a digital platform. BISCON, as you all know, is an initiative by MIG Pune. 2015 में फॉर्मेशन हुआ था। आज का बिस्कॉन वाज द सेकंड डे, कल हम लोगों का बिस्कॉन था, और इन 2 दिनों में बिस्कॉन को करीबन 2500 लोगों ने करीबन 175 सिटी से क्यूमुलेटिवली अटेंड किया हुआ है। जैसे आज हम लोग सब लोग जानते हैं कि रामायण महाभारत चल रही जो आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले आई थी, लेकिन आज भी उसमें वही पावर है जो उस वक्त में हुआ करता था। इनफैक्ट मेरे को लगता है ज्यादा पावर है, और ये पावर इसलिए है क्योंकि उसका कॉन्टेंट बहुत स्ट्रांग है। उसी तरह बिस्कॉन ईयर ऑन ईयर जैसे जैसे होता जा रहा है, हम लोगों ने भी यही देखा है कि बिस्कॉन और पावरफुल हो रहा है बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर, बिकॉज ऑफ द मेंटर्स और स्पीकर्स। आप जैसे लोग अंदर आते हो और एक इग्नाइट करते हो हम सब लोगों को। ये आज हम लोगों का 4th सीजन ऑफ बिस्कॉन था। जैसे मैंने बताया, पहले दिन का जो बिस्कॉन था, इट वाज बीइंग एड्रेस्ड बाय द मोस्ट एक्सपीरियंस एंड द सक्सेसफुल पीपल फ्रॉम माहेश्वरी कम्युनिटी। लेकिन आज का जो बिस्कॉन था, ये एक यंग और एनर्जेटिक लोगों का था, जहां पे बात की गई है कि रिटेल को ईटेल पे कैसे लाया जाए, चाहे वो पेपर बोट हो, चाहे फर्स्ट क्राई हो, चाहे पेयू हो, चाहे रिलायंस क्यों ना हो। तो बात ये हो रही है कि किस तरीके से बदलाव हो रहा है, एंड आई थिंक यू ऑल पैनलिस्ट हैव प्लेड अ वेरी फैंटास्टिक रोल। कई सारे कमेंट, कई सारे मैसेजेस हम लोगों को अलग अलग जगह से आ रहे हैं। यहाँ हम लोगों की उम्मीद थी कि हम लोग कुछ टेक अवे लेके जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि छोड़ के क्या जाए, क्योंकि जितनी भी चीजें आप लोगों ने बात की, सारी चीजें इतनी ग्राउंडेड, सारी चीजें इतनी प्रैक्टिकल थी कि ऐसा कुछ लगा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी लेवल की बातें हो रही है। मेरे को एक ही चीज लगता है कि कंटिन्यूअसली अलग अलग बिस्कॉन के साथ में हम लोग अगर एक गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी जनरली दिन में तो बहुत अच्छे से चलती है क्योंकि बाहर का उजाला होता है, लेकिन जब अंधेरा होता है तब गाड़ी रुक जाती है। तो आप जैसे लोग जब सामने आते हैं तो आप लोग एक हेडलैम्प की तरीके से काम करते हो, जो गाड़ी के आगे का पावर जला देते हैं, वो गाड़ी 24/7 चलती है। तो थैंक्स अ लॉट ऑल द पैनलिस्ट जिन्होंने ये गाड़ी को इग्नाइट करके रखा हुआ है। कल आज का जो हमारा सेशन था वो था इंप्रूविंग बिजनेस एफिशिएंसी पे, जिसमें दामोदर जी मल, आकाश जी मुंद्रा, नीरज जी बियानी, ममता जी एंड सुपम जी माहेश्वरी ने यहाँ पे ये बात किया कि बिजनेसेस की एफिशिएंसी कैसी बढ़ाई जाए। और कल का जो हमारा सेशन था जिसमें सुभाष जी मुंडा, श्याम जी जाजू, श्री गोपाल जी काबरा, मधुसूदन जी केला ने कोलैबोरेटिव बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के ऊपर बात की जाए। जैसे मैंने कल भी बताया था, ये पूरा सक्सेस का श्रेय सिर्फ MIG बिस्कॉन को नहीं जाता है, ये जाता है चेन्नई, महेश स्टार्टअप फोरम फ्रॉम सूरत, महेश फाउंडेशन फ्रॉम हैदराबाद, महेश प्रोफेशनल फोरम फ्रॉम पुणे, जिन्होंने दिन रात एक करके इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए काम किया हुआ है। ये आज का जो इवेंट था करीबन 175 अलग अलग जगहों से लोगों ने देखा हुआ है। जैसे हमारी जो कल्चर है वो हम छोड़ नहीं सकते हैं, चाहे वो फिजिकल फॉर्मेट में बिस्कॉन हो कि चाहे डिजिटल फॉर्मेट में हो।